चलो रिलेटिव मोशन पे वी विल डिस्कस वन सिंपल क्वेश्चन which will improve your understanding. Okay, this is a question. It says that two objects A and B are moving towards each other with velocities 10 meter per second and 12 meter per second respectively as shown. Okay, now what we have to find here is find velocity of A with respect to B and find out velocity of B with respect to A. Okay, clearly you can see if I ask you what is the velocity of A. Velocity of A you will write as 10 meter per second and with an I cap. Okay, in the positive x direction it is moving, so we put positive I cap. Similarly, if I ask you what is velocity of B, okay, so you will say that since it is moving in the negative x direction, we should use minus I cap while writing it. Okay, so 20 meter per second minus I cap. Okay, or I directly can write minus 20 also. Chalo, so velocity of A with respect to B, it will be written as velocity of A with respect to B, that is will be VAB. VA minus VB vector. Okay, VA is how much? It is 10. So 10, okay, minus velocity of B is actually minus 20. So if A is observing B, okay, B will appear to be coming towards him in the negative x direction and will become how much? It is 30. So if A is observed by B, 30 meter per second in the positive x direction. Similarly, if I ask you velocity of B with respect to A, velocity of B with respect to A, this can be calculated as VB minus VA. ठीक है, चलो VB is already minus 20. Okay, minus we have to put the value of VA here. So VA is how much? It is positive 10. It will become how much? It is minus 30. ठीक है, so अगर A देखने लग जाता है B को, तो B किधर की तरफ आता दिखाई देता है? माइनस x डायरेक्शन में आता दिखाई देता है. With what velocity? With a velocity of minus 30 meter per second. ठीक है, both the velocities are in meter per second. It is very easy, right? चलो, now consider this one more term, velocity of approach. ठीक है, what is velocity of approach? See, approach, if I talk about literal meaning, it is coming towards someone, है ना? Approaching someone is what? Coming towards someone. So velocity of approach is actually it is the rate at which separation between two moving particle decreases. ठीक है, जिस रेट पर उनके बीच की दूरियां कम हो रही हैं उसे हम क्या बोलते हैं कि वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा, राइट? तो देखो बच्चा, यहां पे अगर मैं दो डायग्राम्स एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं. देखिए, 10 मीटर पर सेकेंड से A इधर जा रहा है और 12 मीटर पर सेकेंड से B इधर आ रहा है, राइट? तो बच्चों ये एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है बिकॉज दे आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर. ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे लिख दिया डायरेक्टली? जो रेट है उनके बीच का वो क्या हो गया? 22 मीटर पर सेकेंड से उनके बीच की दूरियां कम हो रही हैं, राइट? एक एग्जाम्पल मतलब और अच्छे से अगर एक्सप्लेन करूं मैं, तो देखो, सपोज करो इनके बीच की जो डिस्टेंस थी, सपोज करो वो 100 मीटर है. ठीक है, वो अभी 100 मीटर दूरी पर खड़े हैं. दे आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर. नाउ एक सेकंड बाद क्या होगा? सपोज यहां पे A आ गया. ठीक, कितनी दूर आ गया होगा? 10 मीटर आ गया होगा. 10 मीटर आगे चला गया एक सेकंड में. इन 1 सेकंड हाउ मच इट विल मूव? 10 मीटर. ठीक है, सिमिलरली अगर उसकी बात करूं तो वो एक सेकंड बाद एग्जैक्टली कितना आ जाएगा? 12 मीटर आ जाएगा, राइट? 12 मीटर आ गया वो. तो ये 10 मीटर आगे चल चुका है, वो 12 मीटर आगे चल चुका है. तो दोनों का टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो है वो क्या हो चुका है? 10 इधर से और 12 उधर से. इट विल बी 22. So the distance between them has decreased by how much? 22 मीटर. और वो एक सेकंड में. ठीक, तो डिस्टेंस
अपॉन टाइम, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, 1 सेकेंड में बात कर रहे हैं, सो इट विल बी 22/1, 22 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। रिलेटिव के टर्म्स में अगर बात करता तो डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि VA/B मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, ठीक है, VA माइनस VB, ठीक। A की ऑब्वियसली पॉजिटिव डायरेक्शन में आई विल राइट 10 डायरेक्टली, और B की नेगेटिव डायरेक्शन में है, आई विल राइट -12। ये क्या आने वाला है, 22 मीटर पर सेकेंड। इसको अप्रोच तब बोलते हैं व्हेन दे कम क्लोजर, जब पास आ रहे हैं तब हम उसको अप्रोच बोलते हैं, राइट, दे आर अप्रोचिंग ईच अदर। एक और एग्जांपल है यहाँ पर जिसमें दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं बेटा, बट सी B बहुत स्लो भाग रहा है, B इज रनिंग और मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड से इधर की तरफ जा रहा है, बट A इज एक्चुअली रनिंग बिहाइंड हिम। सपोज कि यहाँ पर एक चोर है B, थीफ इज रनिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड, और क्या हो रहा है यहाँ पर, A जो है वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, इज चेजिंग हिम एट व्हाट स्पीड, 4 टाइम्स हिज स्पीड, 20 मीटर पर सेकेंड पर वो पीछे से आ रहा है, तो ऑब्वियसली द डिस्टेंस विल बी डिक्रीजिंग, ठीक। तो देखते हैं कि A कितनी तेजी से उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, मतलब उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी तेजी से कम हो रही है। तो यहाँ पे अप्रोच वाली बात तो हमें समझ आ गई, एंड द मैग्नीट्यूड वी कैन डायरेक्टली फाइंड बाय फाइंडिंग द रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी बेटा यहाँ पे अगेन V ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। देखिए बच्चे A क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट है जो उधर की तरफ जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में 20 से, तो उसकी वेलोसिटी मैंने 20 लिख दी। B भी उधर ही भाग रहा है इन द सेम डायरेक्शन एंड एट अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, तो इट विल बिकम 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि एट व्हाट रेट द डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, तो वो कितना हो जाएगा बेटा, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक। दिस इज ऑल्सो अंडरस्टूड, आई होप दिस इज वेरी इजी। चलते हैं बच्चों, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब दो पॉइंट्स हैं और वो एक दूसरे से दूर जा रहे हो समहाउ, डायरेक्टली भी दूर जा सकते हैं और अदर वे अराउंड भी, ठीक है। चोर सपोज करो स्पोर्ट्स कार से जा रहा है, सपोज द थीफ इज यूजिंग अ स्पोर्ट्स कार एंड द इंडियन पुलिस इज यूजिंग सपोज अ जीप, एन ओल्ड जीप, तो क्या होगा, ऑब्वियसली चोर दूर चला जाएगा, द सेपरेशन विल इंक्रीज विथ टाइम। तो उस टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जो उनके बीच की रेट होती है, राइट। तो इफ वी सी द डेफिनेशन, इट इज द रेट विथ विच सेपरेशन बिटवीन टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स इंक्रीजेस। जब इंक्रीज होगी उनके बीच की डिस्टेंस, तब बच्चे उसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल इट, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक। एक सिंपल से एग्जाम्पल से फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे जो पुलिस है इट इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, और जो थीफ है इट इज मूविंग एट 12 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा, ऑब्वियसली दूरी बढ़ती जाएगी और पुलिस छूट जाएगी पीछे, द डिस्टेंस विल इंक्रीज बिटवीन देम। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख पाए, देखो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा भाई कि अगर मैं B की बात करूं, क्योंकि B तेज जा रहा है, तो B विथ रेस्पेक्ट टू A अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, वो बेटर रहेगा, ठीक है। तो VB माइनस VA क्या आने वाला है, ये देखिए, अगर मैं B की वेलोसिटी लिखूं तो इट विल बी 10, राइट, सॉरी इट इज, छोड़ देते हैं, B की वेलोसिटी इज गिवन एज 12 माइनस A की वेलोसिटी इज 10, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हर सेकेंड में 2 मीटर से बढ़ जाएगी, 2 मीटर से फिर बढ़ जाएगी। तो अगर मैं जनरली पूछूं आपसे ओरली इफ यू आंसर कि 1 मिनट बाद उनकी डिस्टेंस कितनी बढ़ जाएगी, तो अगर 1 सेकेंड में उनकी डिस्टेंस 2 मीटर से बढ़ जाती है इन 1 सेकेंड, ठीक। तो अगर 1 मिनट की बात करूं बेटा, तो 1 मिनट में कितने सेकेंड्स हो गए, 60 सेकेंड्स, ठीक है। 60 सेकेंड्स इंटू 2 मीटर पर सेकेंड, तो 120 मीटर से वो दूर हो जाएंगे, ठीक है। द डिस्टेंस विल इंक्रीज लाइक दैट। सिमिलरली सेम क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे 20 से वो वाला भाग रहा है एंड इट इज चेजिंग एट 5, दे विल ऑब्वियसली नेवर मीट, वो आगे चला जाएगा
किस रेट से भाग रहा है वो ए के रेस्पेक्ट में 15 मीटर पर सेकेंड से। तो डिस्टेंस इस बार भी हम कह सकते हैं कि सेपरेशन बढ़ रहा है, सो दिस वेलोसिटी वी कॉल इट एज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो हमें डिसाइड करना पड़ता है खुद से कि इफ दे आर अप्रोचिंग ईच अदर और दे आर सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर, मतलब देयर डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। ठीक है, नाउ रिलेटिव मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं बेटा। देखो अभी तक तो सिर्फ वेलोसिटीज की बात की, बट नाउ सपोज कि पुलिस अब एक्सेलरेट करना शुरू कर देती है, ठीक, उनके पास एक्सेलरेशन भी आ जाता है, तो फिर क्या होगा? थोड़ी सी बातें और नेक्स्ट लेवल पे चली जाती हैं। आपको पता होगा कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, आई विल राइट कि इफ, ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा कुछ पता है हमें कि एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट, तो हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशंस वहां पर वैलिड हो जाते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन से हैं बेटा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये तभी यूज कर पाते हैं व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट फॉर द बॉडीज। ओके, सिमिलरली बेटा हम जानते हैं कि s मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, करेक्ट, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। सिमिलरली एक और इक्वेशन है बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशंस हम यूज तब कर लेते हैं जब जो उनके एक्सेलरेशंस होते हैं बॉडीज के, दैट आर कांस्टेंट। तो ये चीज रिलेटिव मोशन में भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हम लोग, बस वहां पर हमें क्या करना होता है, वेलोसिटीज, डिस्प्लेसमेंट्स, एक्सेलरेशंस, ये सब हमें क्या लेने होते हैं बेटा? रिलेटिव। ओके, रिलेटिव टू वन बॉडी। तो इक्वेशंस उस जगह पर क्या बन जाएंगे? व्हेन रिलेटिव मोशन इज बीइंग कंसिडर्ड, तब वहां पे हम ये इक्वेशंस ऐसे लिखते हैं, v रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव, ठीक है, प्लस a रिलेटिव इनटू t। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। मतलब सारे टर्म्स जो है वो फिर रिलेटिव वाले यूज करने पड़ेंगे, डायरेक्ट वाले यूज नहीं करेंगे हम लोग। सो v रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इनटू t। सिमिलरली अगर s के लिए भी बात करूं तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। बस वो सारे वेलोसिटीज, डिस्प्लेसमेंट, ये सब कौन से होने चाहिए बेटा? रिलेटिव वाले होने चाहिए। ठीक है, थर्ड वैसे इक्वेशंस हम फिर से कन्वर्ट कर लेंगे उसको, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये सारे भी क्या करने चाहिए हमें? रिलेटिव वाले ही यूज करने चाहिए। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दिस फर्दर विथ एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हैं और इन इक्वेशंस को हम यूज करते हैं सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि इनसे क्या एडवांटेज है हमें। ठीक है, आई विल कंपेयर बोथ ऑफ द मेथड्स। देखो बच्चे, एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। तो ये सिंपल है, इसमें तो एक्सेलरेशन नहीं है। देखिए, ऑब्जेक्ट इज A is moving with velocity 10 meter per second, B is moving with 5 meter per second in the same direction। ठीक है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और B थोड़ा स्लो जा रहा है, राइट, और A वाला जो इंडियन पुलिस है दैट इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड लकीली। तो इस बार जो है दे विल बी एबल टू कैच देम, द थीव्स। इनके बीच की जो डिस्टेंस है बेटे, ठीक है, वो 100 मीटर दी हुई है एज इन द डायग्राम। ठीक है, A is 10 meter behind B as shown. Find time taken by A to meet B. A को कितना समय लगेगा B को कैच करने में, ठीक है, ओवरटेक करने में, that time we have been asked। तो इसके लिए देखो टाइम है यहाँ पर और हमें डिस्टेंस भी दी हुई है, तो हम क्या लगा सकते हैं? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी वेरी गुड, इन विच टाइम इज ऑल्सो इन्वॉल्व एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इन्वॉल्व। तो बेटा मैं सिंपल सी एक इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करूंगा, बट ये सारी क्वांटिटीज हम रिलेटिव यूज करेंगे, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b क्या है यहां पे? अगर आप चेक करो तो va माइनस vb, बच्चे ये क्या होने वाला है? 10
ठीक है, a का वेलोसिटी -5 b का वेलोसिटी एंड इट विल कम 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो सिंस रिलेटिव एक्सेलरेशन इज 0, यहां पे बेटा एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b ऑब्वियसली क्या है, 0 है, क्योंकि इसका भी एक्सेलरेशन 0 है और इसका भी एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। ठीक, तो हमें एक्सेलरेशन की कोई चिंता नहीं करनी, तो दिस टर्म वी कैन टेक एज 0, इसको हम बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो S रिलेटिव विल बी इक्वल टू U रिलेटिव इनटू T, डायरेक्टली आ जाएगा। S रिलेटिव, उनके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा वो क्या है, 100 है। ठीक, U मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है उनकी रिलेटिव, वो क्या है बेटा यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड इनटू T, तो यहां से क्लियरली हमको मिलता है T इज इक्वल टू 100/5। ओके, इट विल बी 20 सेकेंड। Okay, directly also we can think, this is simple, so if we think it directly, 100 मीटर उनका डिस्टेंस है और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर से कम हो रही है फॉर एवरी सेकेंड, है ना। तो अगर 5 मीटर कम होने लग जाए तो हाउ मेनी सेकेंड्स विल बी रिक्वायर्ड, 20 seconds will be required, in which A will be able to overtake object B। ठीक है बेटा, ये तो बहुत ही सिंपल सा हो गया। एक और ले लेते हैं यहां पे हम लोग, क्वेश्चन सिंपल सा है, देखिए। A and B are thrown vertically upward with velocity 5 meter per second and 10 meter per second respectively, as you can see in the diagram also। A और B दो बॉल्स हैं सपोज करो बच्चे, और उन दोनों को ऊपर की तरफ फेंका गया है, they have been thrown upwards, A को 5 से और B को 10 से, राइट। फाइंड सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 1 सेकेंड, उनके बीच का सेपरेशन हमें निकालना है एग्जैक्टली कितने समय में, 1 सेकेंड में निकालना है। ठीक है, तो अगर हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ काइनेमेटिक्स यूज करें बच्चों, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि सर फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय दिस पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड, इसका डिस्टेंस आफ्टर 1 सेकेंड, एंड देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्टली करूं विदाउट यूजिंग एनी कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, अगर हम कोई भी इक्वेशन रिलेटिव मोशन की यूज ना करें तो कैसे करेंगे वो देखते हैं पहले। देन आई विल यूज रिलेटिव मोशन एंड शो यू कि उससे कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ओके, तो बेटा S ऑफ A क्या हो जाएगा, S ऑफ A मतलब डिस्टेंस मूव्ड बाय A इन 1 सेकेंड, उसके लिए क्या लिख सकता हूं बेटा, डायरेक्टली अगर मैं लिखूं विदाउट एनी रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट, तो वो क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u उसका क्या है बेटा 5, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 5, टाइम कितना लेना है हमें 1 सेकेंड। ठीक, तो 1 ut, ठीक, माइनस लेना चाहिए बिकॉज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हियर विल बी इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन, वो नीचे की तरफ लगेगा, सो आई एम टेकिंग माइनस हियर, माइनस हाफ a मतलब 10 इंटू 1 का स्क्वायर, टाइम इज 1 सेकेंड, करेक्ट है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, देखिए 5 माइनस 5, ये तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, मतलब वो अभी 1 सेकेंड बाद वापस भी आ गया। ठीक है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो क्या है, 0 है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो गया और वापस आ गया, इट हैज कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। सिमिलरली अगर मैं बेटे बात करूं बी पॉइंट की, तो एस बी, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बच्चों u बी पॉइंट के लिए कितना है हमारे पास 10, u इंटू टी 1 सेकेंड, ठीक है, माइनस हाफ उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया बेटा 10 इंटू 1 का स्क्वायर, इसको बेटा कंसिडर करेंगे, इट विल बी 5 मीटर। ये 0 मीटर पे है, इसकी पोजीशन क्या है 0 मीटर और इसकी पोजीशन क्या है 5 मीटर। तो बच्चों एक्चुअली इनके बीच का जो सेपरेशन है, यू कैन डायरेक्टली से कि उनका जो सेपरेशन है डेल्टा एस दैट विल बी 5 मीटर। ठीक है, ए अपनी पोजीशन पे ही है, सपोज करो बी यहां आ चुका है, अभी कितनी ऊपर, इट हैज कम
एट 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, तो उनके बीच का जो सेपरेशन है बेटा दैट विल बी 5 मीटर। ये तो डायरेक्ट हमारे बेसिक काइनेमेटिक्स के प्रोसेस से हमने किया। बट सपोज आई वांट टू डू दिस यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, तो उससे कैसे करेंगे देखिए, u a कितना है यहाँ पर 5 है, u ऑफ b क्या है यहाँ पर 10 है, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a क्या होने वाला है बेटा 10 माइनस 5 ub माइनस ua, ub माइनस ua वो क्या हो जाएगा देखिए, इट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। सिमिलरली अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ऑफ a इज माइनस g बिकॉज इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। Acceleration of b is also minus g because it is also in the negative y direction, नीचे की तरफ ही है। So acceleration of b with respect to a actually 0 आ जाता है because दोनों का acceleration same है। If we subtract ab minus aa वो क्या आने वाला है, it will become 0, right? तो बहुत ही सिंपल सा केस हो गया बेटा, right? उनके बीच का जो सेपरेशन निकालना है, s relative is equal to u relative into t plus half a relative into t का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ऑब्वियसली सेकेंड इक्वेशन हमने बात करी कि रिलेटिव मोशन के लिए ऑल द क्वांटिटीज यूज्ड शुड बी रिलेटिव, ओके। लाइक डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव हो गया, इनिशियल वेलोसिटी भी रिलेटिव ले लिया मैंने, एंड एक्सेलरेशन ऑल्सो हैव टेकन रिलेटिव। तो एस रिलेटिव मतलब उनके बीच का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस जो होगा उनके बीच में, वो क्या लिखेंगे बेटा, यू बी ए देखिए 5, एंड इन क्वेश्चन टाइम कंसिडर्ड वाज ओनली 1 सेकेंड, सो 1, ठीक, प्लस सिंस एक्सेलरेशन इज 0, रिलेटिव एक्सेलरेशन इज 0, तो हमें डायरेक्टली मिल गया 5, ठीक है। तो एक्चुअली अगर आप ये समझते होते हैं, यू कुड हैव रिटन डायरेक्टली लाइक दिस, 5 मीटर्स आ जाता है डायरेक्टली विदाउट एनी कैलकुलेशन, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी से आप एक्सेलरेशन की कंसिडरेशन नहीं करते यहाँ पे, और आपको डायरेक्टली 5 मीटर यहाँ पे मिल सकता है।